we have completed chapter number 7. Today onwards we'll be proceeding with chapter number 8, that is quadrilateral. Okay. In class 8, you might have learned quadrilateral, different form of quadrilateral. Okay. In this class, we'll be discuss that all the types of quadrilateral. Okay. First, we should understand what is the meaning of quadrilateral. Quadrilateral means any polygon having 4 sides. Means ऐसा polygon जिसमें 4 sides हो, that is called as quadrilateral. Secondly, we have to learn a few types of quadrilateral like parallelogram. Okay. Then rectangle, rhombus, square. So based on their properties, some questions are there. So we have to solve that question according to properties of different quadrilaterals. Okay. One more thing. जो प्रॉपर्टीज आती रहेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको मैं बताता रहूँगा. तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी एंड कीप योर कंसंट्रेशन हियर. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. Very first question of exercise 8.1 is the angles of quadrilateral are in ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. Quadrilateral के angles जो है वो given है. First one given that the angles of quadrilateral, what I am letting them that angle A 3x, angle B suppose is 5x, angle C 7x and last one angle D नेगेटिव 9x. ओके. क्वेश्चन में गिवन क्या है, किस फॉर्म में, किस रेशियो में, 3:5:9:13 है. 3 5 then 9 and 13. ओके. किस फॉर्म में, 3:5:9:13. तो ये हमको पता है जब भी कोई नंबर रेशियो के फॉर्म में होता है हम ऑलवेज क्या करते हैं उस नंबर के साथ में कोई वेरिएबल ले लेते हैं. तो हियर आई हैव सपोज दैट एंगल A 3x, एंगल B 5x, next one that is 9x and D 13x. Okay. Now we know that a property of quadrilateral. Okay. Quadrilateral की property हमको बताया था वो कौन सी angles of quadrilateral of 360. Okay. Sum of the angles of quadrilateral is equal to 360. Quadrilateral के angles का सम कितना होता है 360 की हमको बहुत अच्छे से पता है. Okay. तो I can write angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to what? 360. Okay. Instead of what we can keep this one 3x plus 5x plus 9x plus next one what? 13x equals to 360. 5 3 8 and 17 and 30 38 will be equal to what? 360. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 से 360 को डिवाइड कर देते हैं. Value back, that would be what? 12. Okay. Now I have to find the value of A, B and C and D. Okay. So finding angle A I suppose what? 3x. So 3 instead of x की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगा? Value of x, that is what? 12. Angle A क्या आएगा? 36 degree. Angle B I have what? 5x. So 5 instead of x I take again what? 12. So 5 dash 12 by 60. Angle C I had what? 9x. So 9 into 12 it would be 108. Angle D I have what? 13x. So what? 13 into 12 it would be what? 154 156 156 degree. So these are the all 4 angles of quadrilateral ABCD में चारों एंगल रेशियो के फॉर्म में थे. मैंने फर्स्ट को A B सपोज कर लिया, सबके साथ में एक्स ले लिया, देन एंगल का प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में लगा दिया और सॉल्व कर दिया. ओके. दिस वाज द फर्स्ट वन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड वन. विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड वन. सी सेकंड वन इज व्हाट? इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम में ABCD उसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल है. देन वी हैव टू शो दैट इट इज रेक्टेंगल. ओके. तो पहले हम गिवन है एक पैरेललोग्राम है ABCD. सपोज आई हैव मेड ABCD. ओके. तो गिवन सेक्शन क्या लिखेंगे हम? ABCD इज द पैरेललोग्राम. आगे क्या बोल रहा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल है.
को क्या शो करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, और टू प्रूव ABCD is a what? Rectangle. ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो हमको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ABCD पैरेललोग्राम में AB और CD इक्वल होगी, AD और BC इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो डायगोनल इक्वल ये वाला ऑलरेडी हमको बताना है कि ये रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है नो डाउट, बट पैरेललोग्राम में ये जो एंगल है कोई भी दो एंगल, ओके, लाइक टू लाइन्स पैरेलल है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन में इंटीरियर एंगल का सम, ओके, इंटीरियर एंगल जो है अगर ये 90 90 हुए तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इज इट क्लियर? रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, बट पैरेललोग्राम में 90 नहीं होते। इफ वी शो any two adjacent angle equals to 90 degree, then we can say this must be the rectangle. Okay, तो देखिए करना क्या है, पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। मैं ले लूं ट्रायंगल ए बी और सी, एक तो ये ट्रायंगल लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड सेकंड ट्रायंगल में ले लेता हूं कौन सा, ट्रायंगल डी सी बी। ओके, तो मैं एंगल सी वाला और एंगल बी वाला ये दो ट्रायंगल में ले लेता हूं, तो ए बी सी एंड ट्रायंगल सेकंड टाइम लेंगे इसमें ट्रायंगल डी सी बी। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, देखिए फर्स्ट मैं ले लूं AB इक्वल टू BC, अपोजिट साइड पर पैरेललोग्राम इक्वल, ओके, तो आई कैन राइट AB इक्वल टू व्हाट, BC, क्लियर। सेकंड थिंग, ट्रायंगल ABC की साइड AC और ट्रायंगल DBC की साइड BD, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन था, तो वी कैन राइट AC इक्वल टू व्हाट, BD, AC इक्वल टू व्हाट, BD इज ऑलरेडी गिवन। थर्ड थिंग मैं क्या ले सकता हूं कि मेरा जो BC साइड है वो कॉमन है, तो आई कैन राइट BC इक्वल्स टू BC, कॉमन साइड, तो थ्री साइड में बता दी, तो बाय साइड साइड आई कैन राइट व्हाट, बाय साइड साइड आई कैन राइट ट्रायंगल व्हिच वन, ABC will congruent to triangle which one, DCB, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो C की से एंगल B और एंगल C को मैं इक्वल लिख सकता हूं, एंगल B में एंगल ABC by CBC I can write what, angle ABC will equal to angle DCB, अब इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू एंगल DCB। ओके, अब देखो अगर दो लाइन पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो आई कैन इफ आई टेक एंगल B and C, so I can write what, angle B means angle ABC, angle ABC plus angle C means I can write angle DCB, angle DCB will equal to what, 180 degree, 180 degree। ओके, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में ABC DCB की इक्वल है, तो मैं DCB को ABC से रिप्लेस कर दूं यहां पे, तो ABC as it is instead of DCB I can write what, angle ABC equals to what, 180 degree, ABC and DC will become what, 2 angle AB equals to 180 degree, so angle ABC I will get what, 90 degree, 2 से इसको मैं डिवाइड करता हूं, if ABC is 90 then DCB must be 90। ओके, अब क्या हुआ कि ये 90 है, ये भी 90 आ गया, हमको पता है ABCD पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये 90 है देन दिस मस्ट बी 90, if B is 90 then D must be 90, चार एंगल 90 हो गए, साइड्स ऑलरेडी पैरेलल है, देन वी कैन से therefore ABCD is a rectangle। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। See, now we'll continue with question number third. Okay, third. See, what is third question? Please use your diagram. Okay, show that if the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles, then it is rhombus. क्या बोला है? एक quadrilateral. So I am taking again a quadrilateral ABCD. I have a quadrilateral ABCD. क्या बोला है क्वेश्चन में देखिए, show that if the diagonal, if word लगा हुआ है मतलब पहले वो given जो सेक्शन है वो बता रहा है, if the diagonal of quadrilateral bisect each other at right angle, तो ये diagonal है AB और DB, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये फोर्थ एरिया में इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मींस दे आर डिवाइडिंग ईच अदर इन टू इक्वल पार्ट। ओके, एक राइट एंगल यहाँ जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 90, ये सब गिवन है, गिवन क्या है
we'll write OA equals to OB, sorry, OA equals to OC, not OB. And second one, OB equals to what? OD. And also क्वेश्चन में गिवन क्या है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने में यहाँ ये एंगल बनेंगे, ये भी राइट बनेगा। सेकंड राइट एंगल which one? AOB equals to angle BOC equals to angle COD equals to angle DOF। ये सारे एंगल्स क्या है? 90 है। ओके, ये गिवन है, हमको प्रूव क्या करना है? शो दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रोम्बस। ये रोम्बस है। ओके, तो ABCD is a रोम्बस। ये रोम्बस है, तो रोम्बस में क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। अगर मैं ABCD को इक्वल बता दूं तो ऑल साइड मेरी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट साइड टेक दिस टू ट्रायंगल, एंगल AOB and triangle DOC। तो इन ट्रायंगल AOB and then taking second one and triangle which one? DOC। देखें AOB में ये और ये ट्रायंगल है, OA और OC इक्वल है, राइट OA इक्वल टू OC, OB और OD भी इक्वल है, ये भी गिवन है, OB इक्वल टू OD। ये दोनों कहां से लिखे मैंने? दोनों ऑलरेडी गिवन है। थर्ड थिंग आई कैन टेक दिस वन, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC इक्वल टू 90। ये भी गिवन था, AOB DOC, ये भी 90 गिवन है। ओके, so by side angle side, here also side angle side, we can write by which one? Side angle side, triangle AOB congruent to triangle which one? DOC। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर congruent हुए तो CPCC, ये साइड और ये साइड को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, I can write by which one? CPCC। AB will equals to what? Equation first। ओके, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ AOB और सपोज ये लेता हूँ। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल सेकंड आई एम टेकिंग विथ these two triangles BOC, ट्रायंगल BOC। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? मैं पहले क्या लिख सकता हूँ? OA equals to OC आएगा, I can write OA equals to OC। Second I can write which one? Angle AOB equals to angle BOC, AOB equals to angle BOC equals to what? 90, both are having the measurement 90 degree, and OB side OB is common, so we can write OB equals to what? OB। So again I have used this property, side angle and side, same thing side angle and side। Okay, so we can write again by side angle side, triangle AOB will be congruent to triangle BOC। दोनों ट्रायंगल अगर congruent हुए then I can write by CPCT, AB will equal to what? BC। इक्वेशन सेकंड, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में ABCD इक्वल था, इक्वेशन सेकंड में AB BC की इक्वल है, मींस AB BC और CD तीनों आपस में इक्वल होंगे। सेम प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ भी लगा दूं और यहाँ भी लगा दूं तो फिर बोथ साइड इक्वल हो जाएंगी। इन शॉर्ट आई कैन राइट व्हाट? So therefore AB will equal to BC will equal to CD will equal to DA, and if we have shown all the sides are equal then we can say yeah it must be hence ABCD is a what? Rhombus। Is it clear? तो ये rhombus सारी साइड इक्वल हो गई है। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है? शो दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो इक्वल है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल so that diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle। अब हमको बताना है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 पे, तो वो क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट होगा। दैट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। एंड वन मोर थिंग, आई प्रोवाइड दैट PDF file also, so you can see there। Okay, now let's move to question number 5. Fifth one is on show that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फिफ्थ वन
क्या बोला है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सेम थिंग, क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्या गिवन सेक्शन क्या है, इसके डायगोनल जो है इक्वल है। फर्स्ट थिंग, डायगोनल इक्वल है, मींस वी कैन राइट ए सी इक्वल टू बी डी एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मींस ओ ए इक्वल टू ओ सी and second OB will equal to what, OD bisect each other at right angle। तो ये भी बोला है कि ये जो है राइट एंगल तक बाइसेक्ट कर रहा है, मींस यहाँ पे एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल DOA, ये चारों एंगल क्या है 90 डिग्री, ये गिवन है। तो डायगोनल इक्वल है AC इक्वल टू BD, ओके, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये भी इक्वल है। कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे, तो ये चारों जो एंगल बनेंगे यहाँ, ये चारों एंगल, ये भी क्या होंगे 90 90। ओके, आगे क्या बोला है, देन राइट एंगल, देन इट इज अ स्क्वायर, मींस वो एक स्क्वायर होगा, ये आपको बताना है कि एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर में क्या होता है कि ये जो एंगल्स हैं, ओके, वी शो व्हाट वी हैव टू शो टू प्रूव ABCD is a square, okay, स्क्वायर में क्या आपको बताना है, पहले AB BC CD OD ये चारों टाइप्स के इक्वल बताना है। ये साइड तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, सेम सॉल्यूशन जो मेरा थर्ड का सॉल्यूशन था, सेम वो सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो एलईडी पे बता दूंगा, नो डाउट, क्लियर है। जो थर्ड में हमने किया है इतना तो एलईडी करना, जो एलईडी में रोम्बस देखा है, यहाँ भी क्या कर दूंगा, एलईडी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, थर्ड क्वेश्चन अभी जो मैंने थॉट किया एलईडी पूरा करना है, ओके। स्क्वायर नहीं लिखते हुए मुझे यहाँ क्या करना है, इतना करने की बात है। एक तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ओके, देन स्क्वायर की जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो आई टेक एनी टू ट्रायंगल, जो मैंने फर्स्ट में किया था, मैं ले लूंगा ट्रायंगल ABC और फिर मैं ले लूंगा ट्रायंगल DCB, ये दोनों ट्रायंगल ले लूंगा। दोनों ट्रायंगल में फॉर्मूला बताऊंगा ये और ये, तो मेरे ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर दोनों का सम 180 से करके मैं ये 90 90 बता दूंगा, ओके। सिमिलरली आई कैन राइट एंगल A एंगल G आर आल्सो 90 90, तो चारों एंगल 90 हो गए, साइड इक्वल हो गई, देन आई कैन से देन इट मस्ट बी द स्क्वायर। क्लियर है, करना क्या है, जो थर्ड में सॉल्यूशन हमने किया है पूरा ऐसे ही करना है टिल हियर, ओके। उसके बाद में हमको फिर एक चीज क्या करना, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिया था, सेकंड में क्या, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है, एंगल B और एंगल C को इक्वल बताना है। B और D का सम आएगा 180 डिग्री, ओके, तो वो B भी 90 हो जाएगा, फिर सॉल्व करके C भी 90 हो जाएगा। B और D 90 हुए, we have to write only just one line that similarly angle A and angle D are also 90, if A B C D all angles are 90 then it must be square। clear है, तो solution of this question you have to solve। now see question number which one, 6th। Okay, question number which one, 6th। diagonal AC of parallelogram ABCD bisect angle A। क्वेश्चन में क्या है कि पैरेललोग्राम है अपने पास में, सपोज ये पैरेललोग्राम है ABCD, फिगर बुक में फिगर है, ओके, ABCD, ओके। क्या बोला है, डायगोनल ऑफ AC, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल है। जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ओके, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सेकंड, तो फर्स्ट आई राइट व्हाट इज गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स इक्वल होगी और पैरेलल होगी। आई कैन राइट AB and CD are equal and as well as parallel BC and CD are equal and also parallel। AC bisect एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, DAC इक्वल टू एंगल विच वन, BAC, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ओके। क्या प्रूव करना है, देखिए फर्स्ट थिंग प्रूव क्या करना है, फर्स्ट वन क्या है, इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, मींस AC बाइसेक्ट एंगल C। और सेकंड में हमको क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस,
यहाँ पे करेंगे क्या, ए थी फर्स्ट दे हैव टोल्ड दैट एबीसीडी इज अ रोमस, ओके। तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज मैं ये ले सकता हूँ कि ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करूँ, तो सीधी सीधी से मेरे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो तो मैं कह सकता हूँ कि ये बाइसेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स टेक सी इन ट्रायंगल which are these two ABC, triangle ABC, and second triangle I take one, triangle ABC. In both triangle I can write AB equals to BC. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Okay. Second I can write which one? This one I have taken. Okay, AB and DC. Next I can take one angle is BAC. BAC is equal to angle DAC. Angle BAC is already given. Third AC will be common, and AC दोनों में common होगा. I can write AC equals to what? AC common sense. Okay, so by angle side by side angle side we can take it. Wait. Here I have taken side angle and side, but यहाँ ये side तो मैंने ली नहीं है. Okay, so I have to take the I have to take कुछ means I can't take which one AB equal to BC and yes wait. मैंने AB और BC ले लिया. ओके, ये दोनों एंगल ले लिए, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ तो साइड एंगल तय बन रहा है, बट यहाँ साइड एंगल साइड नहीं बन रहा है. ओके, सेकंडली व्हाट आई हैव टू टेक इंस्टेड ऑफ व्हिच वन दैट AB and DC आई हैव टू टेक व्हाट इफ AB. देखिए थोड़ा सा करेक्शन हम देखिए चले तो ये लेके चलूंगा, मेरे को नहीं पता. ओके, तो व्हिच प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू टेक, आई टेक दैट इफ सिंस ABCD is parallelogram. Okay, तो AB और CD पैरेलल होगा, तो AB इक्वल पैरेलल टू CD. और अगर पैरेलल है तो देखिए यहाँ एक Z बन रहा है. ओके, ये अगर Z बन रहा है तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा. इज इट क्लियर? एंगल DCB will equal to एंगल ABCD. एंगल DCB will equal to एंगल which one? BAC. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेम थिंग, अब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, but definitely these two angles must be equal. Angle BCA will equal to what? DAC. इक्वेशन नंबर सेकंड क्लियर है. अब एक चीज और यहाँ पे देखने को ये मिलेगी, ये देखिए ये दो एंगल कौन से, ये एंगल पहले इनको बनाना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ. ओके, और ये एंगल इक्वल हो गया. इज इट क्लियर? और सेकंड थिंग क्या है कि दोनों के बीच में एक साइड आ गई है. ओके, अब एक चीज यहाँ से अगर मैं स्टार्ट में देखो यहाँ BAC BCD के इक्वल है, यहाँ BAC DAC के इक्वल था. ओके, यहाँ BCA मेरा DAC के इक्वल था, यहाँ DAC BCA के इक्वल है, मतलब कहीं ना कहीं सारे एंगल इक्वल हो गए. ओके, so I can write therefore angle BCA will equal to angle DCA. दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, then we can say what? This one AC bisect angle C also. तो ये बहुत बड़ा प्रूव हो गया. अब मुझे क्या बताना है कि ये रोमन है. अब कहीं ना कहीं मेरे इक्वल है, ये 1 2 3 4 चारों एंगल आपस में इक्वल है. इज इट क्लियर? सो आई कैन टेक सेकंड वन इन ट्रायंगल व्हिच वन? ABC. ओके, ABC में मेरे ये एंगल और ये एंगल दोनों का एंगल इक्वल है. सो आई कैन टेक एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA. इक्वेशन 1 2 अब मैं इसको सेकंड ले लूं, इसको मैं थर्ड ले लूं, इसको मैं फोर्थ ले लूं. तो 1 2 3 से मेरे ये दोनों एंगल के एंगल इक्वल है. और एक हमको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है इसके दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी. ओके, इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो मैं कैन बी इक्वल टू व्हाट? BC. क्लियर? अब अगर मैं एक और यहां डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूं,
ओके, अब मैं ये ट्रायंगल लूंगा, ठीक, उसके पहले मैं ये लेता हूँ, इज इट क्लियर? ये चलिए, ये ट्रायंगल को अगर मैंने ठीक कर दिया, अब मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा तो उसमें क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मेरा क्या आ जाएगा, AD और DC भी इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आई कैन राइट AB equal to DC, और AD equal to DC हुआ, also AB equal to and AB equal to DC की पैरेलल हो रहा है, ओके, और BC equal to AD। तो इन सारी साइड्स को मिला के मैं इन शॉर्ट क्या लिख सकता हूँ कि AB equal to BC, therefore AB equal to BC equal to CD equal to DA, चारों अगर इक्वल हुई and I can say ABCD will be a rhombus। क्लियर है, एक रॉम्बस हो जाएगा। दिस वाज द सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ 6 from exercise 8.1। now we'll see the next question number that is question number which one, question number 7। okay, Kamal is what, ABCD is rhombus, show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। okay, तो आपको करना क्या है, सेम इसी टाइप से आपको दो ट्राइंगल इसी टाइप से आपको ये लेना है क्वाड्रिलेटरल, और उसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता के प्रूव करना है। ओके, तो उसका जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, देन यू कैन सी देयर। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर व्हिच वन, 8th one। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 we'll see in the next part। okay, because the video already has so long, so please see for the next video, keep watching। in the next session I'll discuss and I'll explain from question number 8 onward। okay, so watch it carefully and try to solve the remaining question which I had left। okay, yes, PDF I'll provide later on when the video of this chapter will be uploaded to the site, okay, school's website, there also you'll get the PDF of this chapter। okay, so please watch it carefully and still if you find any difficulty so you can ask me। देखिए चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए और कंफ्यूजन अगर कुछ है तो पूछे। ओके, प्रॉपर्टी लाइक प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, दिस ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, अगर आपको यहाँ नहीं पता है so you can use your 8th class book। ओके, 8th में आई थिंक चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर में जो समरी रिटर्न है NCERT की बुक में, वहाँ सब सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी रिटर्न है, so you can see there also। okay, so thank you for this session, watch it carefully and if you find any doubt so you can ask me। thank you।